Sangeet Natak Academy, award Sangeet Shiromani Samman, National Council by National Council of Asian Indian Association, United States of America, and different honors and accolades from different organizations of national and international arena. So Dr. Vijay Kumar Jena will just present his deliberations on the ragas unique to Odissi music, and this session is being chaired by Guru Bankim Sethi, one of the great sons of Odisha Mother Utkal Janani, and he will be making an assessment after the rendition of Guru, after the presentation of Guru Vijay Kumar Jena, and he is being supported by Guru Sachidananda Das and the Mardal. Guru Sachidananda Das is the Associate Professor at Guru Pravucharan Mahapatra Odissi Research Center and has been an eminent Guru. And Guru Srinivas Satpathy is here, who hails from Utkal Sangeet Mahavidyalaya Bhubaneswar and is one of the finest flutists of our state of Odisha, and he is also the Bismillah Khan awardee. Bismillah Khan is the winner of Bismillah Khan Yuva Pratibha Award from the Ministry of Culture, Government of India, and Sri Muralidhar Swami is an established and multi-talented artist, and he is also giving his support on the harmonium. So, presenting ragas unique to Odissi music, how Odissi music has come off of a great tradition, and what are the specific ragas to Odissi music and how it stands different from, so far as classical trends is concerned, so far as classical norms is concerned, how it stands distinguished. So that will be established by Guru Dr. Vijay Kumar Jena. So with a big round of applause, we welcome Guru Dr. Vijay Kumar Jena, and this session is being chaired by Guru Bankim Sethi ji. Hello. Mahambodhistire Kanakaruchire Neela Shikhare Basan Prasadantah Sahajabala Bhadre Nabalina Subhadra Madhyastha Sakala Suraseva Basarado Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu Me Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu Me Jagannath Swami Nayana Pathagami Bhavatu Me Guru Brahma Guru Vishnu
गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमस्ते। जय जगन्नाथ। उड़िया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग की तरफ से गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी गवेषणा केंद्र और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली स्थित आदि कवि सारला दास चेयर ऑफ उड़िया स्टडीज उड़िया अध्ययन केंद्र आप सब जानते हैं कि मिलित सहयोग से 2 दिन तक चलने वाले शास्त्रीय ओडिसी संगीत के परंपरा शीर्षक आलोचना चक्र में मुझे अपने विषय उपस्थापन करने की सौभाग्य के लिए ईश्वर और आयोजक सभी को अपनी कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा हूँ। साथ ही विशेष रूप से गुरु केलुचरण महापात्र ओडिसी गवेषणा केंद्र के मुख्य कार्यनिर्वाही श्रीकता दास महोदया, इनके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अनुजा तारिणी मिश्र महोदया और अन्य सभी कार्यकर्ताओं और कवि सारल दास के चेयर ऑफ उड़िया स्टडीज JNU जो मुख्य उदयनाथ साहू जी को उपस्थित सभी सुधी विद्वान और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। इस मंच में उपस्थित चेयरपर्सन के हिसाब से मेरे बड़े भाई विशिष्ट ओडिसी संगीतज्ञ श्री गुरु श्री बंकिम सेठी महोदय, सभी को मेरा प्रणाम और विनीत जी प्रणाम मेरा। इस आलोचना चक्र के सार्थक के लिए मुझे सौंपा गया गुरु दायित्व विषय के रूप में अभी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस संदर्भ में मेरा विषय है ओडिसी संगीत में रागों की अनन्यता। तो इंग्लिश में जो यूनिक आप समझ रहे हैं, तो ओडिसी संगीत में ये जो राग की अनन्यता को यथा सामर्थ्य आपके सामने उपस्थापित कर रहा हूँ। दुर्भाग्यवश अगर कोई त्रुटि हो जाए तो विद्वान से क्षमा याचना कर रहा हूँ। आलोचित गंभीर विषय के मेरे द्वारा संक्षिप्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। विषय उपस्थापन के दृष्टि से अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं पुनः क्षमा याचना करता हूँ। यहाँ तो सब विद्वान उपस्थित हैं समुख में, जितने भी लोग हैं शायद मैं सोच रहा हूँ कि ये सब सुनने वाले हैं। अभी मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे गुरु जैसे और बड़ा भाई जैसे पितृतुल्य है, सब टाइम पे मेरे साथ में काल के जो मुख्य आकर्षण थे वक्तव्य में श्रीयुक्त शांतनुनाथ जी मैं इनवाइट कर रहा हूँ मेरे साथ में थोड़ा बैठने के लिए। अगर कुछ जरूरत होगा तो मैं शांतनु जी का सहायता लूँ ताकि इनको बल मिले और कुछ नहीं, उसको थोड़ा बल चाहिए। पीछे कोई बैठा होगा तो अच्छा से बोल। हम सब लोग जानते हैं कि भरतनाट्य शास्त्र के बारे में सब मालूम है, सबको इंडियन म्यूजिक टोटली हम लोग सब फॉलो करते हैं भरतनाट्य शास्त्र को। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 13वें अध्याय के 36 से 56 तक वर्णित श्लोक में उस समय में भारत के विभिन्न स्थान में प्रचलित स्थानीय वेशभूषा, आचरण, भाषा, कार्य तथा व्यवहार आदि विविध पक्षों का विचार करके उनको प्रवृत्ति के अर्थ में वर्णन किया गया। प्रवृत्ति के अर्थ मालूम है, इसी संबंध में श्लोक भी है। चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्य प्रयोक्तृभिः आवन्ति दाक्षिणात्या च पांचाली चोड्रो मागधि।
काल भी उसके बारे में चर्चा हुआ था, उसके मैं एलाबोरेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं पास कर रहा हूँ। तो ये जो चारों प्रवृत्तियों से भरत मुनि के समय में जो उड्र मागधी नामक प्रवृत्ति थी, उसी से निश्चय ही संगीत, नृत्य, वाद्य तथा नाटकों की धारा आज समृद्ध है, भारत में आज समृद्ध है। तो वही उड्र संगीत ही है जो वर्तमान काल में प्रचलित ओडिसी संगीत का धारा प्रवाह के रूप में सुप्रसिद्ध हुआ है। हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की तरह ओडिसी संगीत ने भी अपनी परंपरा, प्रयोगों तथा प्रविधियों की सीमा में खुद को शामिल करते हुए अन्यतम शास्त्रीय संगीत के रूप में अपनी पराकाष्ठा को प्रदर्शित किया है। यहाँ जो मेंशन किए हैं हम परंपरा और प्रयोग और प्रविधि। परंपरा आप मालूम है, ट्रेडिशन। एक शास्त्रीय संगीत में ये जरूर है, हिंदुस्तानी में हो, कर्नाटक में हो, परंपरा क्या ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन में फिर दो प्रकार चीज़ आ रही है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड गायन की परंपरा क्या है, एक सदियों से पूरा अभी तक देखना चाहिए क्या है परंपरा में। प्रयोग, परफॉर्मेंस से प्रयोगात्मक शैली, किस प्रकार हम लोग क्या गाते हैं, किस टाइम में गाते हैं। और प्रविधि, प्रविधि मतलब व्याकरण, क्या क्या व्याकरण है, क्या क्या संगीत क्या इसमें रचित हुआ है। तो हम अभी परंपरा और प्रविधि के बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। ख्रीष्टपूर्व 2वीं शताब्दी के ऐर सम्राट खारवेल की कृतियों, नाट्य शास्त्र में स्थित उड्र मागधी आदि प्रवृत्तियों के विचार तथा चर्या साहित्य के राग युक्त पदरचना में लेकर 19वीं शताब्दी तक रीतिकाल के काव्य कविताओं ने वर्तमान प्रचलित ओडिसी संगीत को परिपुष्ट करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इसमें थोड़ा बहुत शॉर्ट कर दिया क्योंकि काल तो डिस्कशन हुआ था इसके बारे में। तो इसके साथ इस कालखंड में बहुत सारे संगीत के ऊपर आधारित ग्रंथों का रचना हुआ था, जिसमें ओडिसी संगीत का व्याकरण विस्तृत रूप से वर्णना किया गया। आप देखिए, हमारा ओडिसी शैली में गीत प्रकाश, संगीत नारायण, संगीत मुक्तावली, संगीत कल्पलतिका, संगीत आत्मव चंद्रिका, संगीत कौमुदी, संगीत सरणी, बहुत सारे ग्रंथ है जिसमें ड्राम, मूर्छना, स्वर, श्रुति और रागों की बारे में वर्णन किया गया है। तो अभी में प्रयोग मालूम है कि परिवेशन की शैली, किस प्रकार हम क्या क्या गाते हैं और किस प्रकार गाते हैं। प्रयोगात्मक दृष्टि से विचार करने पर रागों के गायन और वादन ही शास्त्रीय संगीत के मूलाधार है। राग नहीं तो शास्त्रीय संगीत का नहीं हो नहीं पाएगा। प्रत्येक शास्त्रीय संगीत में राग ही मूलाधार है। तो शास्त्रीय संगीत के वो मंच में गायन और वादन के समय में प्रयुक्त कला कौशल के साथ उसके समय समस्त विभवों, जो विधा होते हैं शास्त्रीय संगीत में, जो विधा समस्त विभवों को उसी के शैल में प्रदर्शित किया जाता है। जिस प्रकार में बाद में आगा प्रयोग अर्थात क्रिया पक्ष किसी भी शास्त्रीय संगीत में अधिक गौरवशाली होता है। जितना भी हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं और समझते हैं और ऑडियंस भी समझने के लिए बोलते हैं, तो इसके छोड़ के जो क्रिया पक्ष है ना, तो अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो बोलने से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए क्रिया पक्ष का बहुत जरूरत है प्रत्येक शास्त्रीय संगीत में। जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद और धामा, ख्याल, ठुमरी, तराना, गजल, चैती, विनियुक्त, तो सब ये सब पता है, रिसर्चर है, प्रोफेसर है, सब मालूम है। और कर्नाटक संगीत में पदम, वर्णम, जावली, कीर्तनम, तिलाना, ये सब आदि गाया जाता है। ठीक उसी प्रकार ओडिसी संगीत में ओडिसी प्रबंध होते हैं। ओडिसी, चंपू, छंद, चौतीसा, पल्लवी, गीत गोविंद, मालश्री, भजन, जणन आदि ये सब गाया जाता है। उसी तरह ये सब ओडिसी संगीत के मुख्य अंग है, जो हम लोग के तो प्रबंध
गीत के रूप में, प्रबंध और गीत के नाम से जाना जाता है। गायन तथा वादन की दृष्टि से जैसे हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत में एक स्वतंत्रता रहती है, वैसे ओडिसी संगीत का भी एक स्वतंत्रता है। ओडिसी संगीत की विशिष्टता है न द्रुत न विलंबित, अर्थात यह न तो शीघ्र परिवेशन किया जाएगा न तो धीरे परिवेशन किया जाएगा। बात तो है ये क्या है, अतः इसमें लय, इसमें मध्य लय, हम ज़्यादा विलंबित नहीं कर पाएंगे और ज़्यादा भी द्रुत नहीं होगा। तो किस प्रकार मैं थोड़ा आपको गा के सुना रहा हूँ। एक हेलो, ये इसका भी एक कारण है, इसको क्यों मध्य लय में गाया जाता है, द्रुत क्यों नहीं होता, विलंबित क्यों नहीं होता, इसका कारण हमको पता होना चाहिए। हम बोल देते हैं ठीक है ये मध्य लय में हम गाते हैं, द्रुत नहीं है, विलंबित नहीं है, ओडिसी संगीत का ये स्वातंत्र्य है, क्यों है उसका भी पता होना चाहिए हमें। इसी का कारण ये है कि ओडिसी संगीत हम जिसको कहते हैं उसका आधार साहित्य है। इसे निरुता संगीत नहीं है, वो साहित्य के ऊपर आधारित है, साहित्य के ऊपर आधारित है। इसलिए भावात्मक रचनाएं हैं, कविताएं हैं, पुराण के ऊपर आधारित काव्य है, तो इसी ऊपर गायन हम करते हैं। इसीलिए द्रुत और विलंबित उसमें नहीं होता है, मध्य लय में ही गायन किया जाता है उसको, क्योंकि उसका वर्णन विस्तार से किया जाए, यही कारण है। द्रुत नहीं है, विलंबित नहीं है, मध्य लय में। और जो हमारा जो शैली होता है, शैली में ये पूरा फिट हो जाता है। ये तो एक कारण है, राग और भाव ये सब को देखना पड़ता है उसमें। तो मैं थोड़ा गा के सुना रहा हूँ। एक राग आनंद भैरवी में थोड़ा थोड़ा झलक सुनाने का, बहुत सारा विधा है, गाने के लिए टाइम लगेगा। देखिए कि शोभा को कुंजे मदन मोहन चाहरे प्राणमित कि शोभा ज्यादा खींच लो। देखिए रफ्ती जिस प्रकार को बोले कि शोभा को कुंजे मदन विलंबित लय में यही रस भी नहीं आएगा और भाषा भी थोड़ा प्रॉब्लम, मुझे गाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें ये एक कवि का रचना है। इस कवि इस रचना में जो भाव का प्रकाश किया है, वो भाव अगर आप इसको विलंबित में गाएंगे तो भाव उभर के नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर आप इसको द्रुत भी करेंगे तो भी भाव नष्ट हो जाएगा। हाँ, कि शोभा को कुंजे मदन मोहन
धौली तोड़ी की शोभा मदन। देखिए इसका धर्म क्या हो रहा है, तो की शोभा कुंजे, पता चला आपको किससे? ये जो है इसमें ये जो मध्यलय में गाया इससे ही कविता के जो रचना के मूल भाव वो प्रकाश होने का ज्यादा संभव है। इसीलिए इसको धृत नहीं गाते हैं, विलंबित नहीं गाते हैं, मध्यलय में गाते हैं। ठीक सब। तो इसके साथ आंदोलित गमक को आधारशील मानकर अति मनोहर रूप लेकर अपनी स्वतंत्रता को ओडिसी संगीत जारी रखता है। हमारे संगीत में भाषा, भाव तथा राग के ऊपर जोर देकर मनोहारी रूप से गायन किया जाता है। यहाँ आंदोलित गमक एक प्रसंग आ रहा है। आंदोलित गमक शास्त्रों में 15 की प्रकार तरह गमक वर्णन किया गया है। तो उसमें उससे चारों प्रकार का जो गमक ओडिसी संगीत में ज़्यादा व्यवहार रूप में लिया जा रहा है। क्या क्या है? पहले आंदोलित गमक, देन कुरल और कुरुल भी कहते हैं, देन आहत एंड देन उल्लसित। एक गाना गा के मैं सुना रहा हूँ, क्या आंदोलित क्या है, कुरल क्या है, ये सब हमारा जो शास्त्रीय संगीत है पुराना गाना में बहुत ज़्यादा व्यवहार होते हैं। और इसके ये 4 गमक छोड़ के फिर एक ढालू एक क्रिया है, जैसे सारे तेरे एक छंद और बहुत पुराना जो परंपरा गाना में भी बहुत सारा व्यवहार होते हैं। तो अभी के गमक के बारे में थोड़ा उतार चढ़ाव के। हाँ, तो जैसे आरोही अवरोही किया जा सकता है। तो अभी में जो चारों प्रकार की गमक किस प्रकार हम व्यवहार करते हैं। ये है आंदोलित गमक का रूप है। सारे गा एक साथ सारे सारे रे गा मा गा मा मा पा सारे गा मा, ये है आंदोलित गमक। फिर कुरल क्या है? 6 स्वर को एक साथ में लेते हैं, हम लोग लेते हैं। हमारा गुरुजी गुरु गोपाल चंद्र खन्ना ने ये हमको ये ट्रेनिंग दिए थे कि कुरल ऐसा है सारे सा गा रे सा इस अलंकार में है दानी दा सानी दा पादा पानी दा पा कोमल के साथ में गा रहा हूँ। मा पा मा धा पा मा, गाना में भी बाद में गाऊंगा। फिर उल्लसित क्या है? मैडम जी थोड़ा धीरे से, थोड़ा धीरे से प्लीज। देन आहत गमक क्या होता है? सारे सारे सा घरे सा, आगे वाला स्वर को थोड़ा धक्का देके फिर ये खुद मूल स्वर को फिर लौटेंगे। सारे सारे सा घरे सा रे गा रे मा गा रे गा मा गा प मा गा सारे सारे सा घरे सा नी रे सा नी दानी दा सा नी दा, ये है आहत गमक का। फिर उल्लसित क्या है? इस मील क्रिया का साथ होता है। एक गाना ये है उल्लसित क्रिया, बहुत सारा ये। फिर ये ढालू, ये गमक में नहीं, ये गमक जैसा एक पारंपरिक क्रिया है। एक गाना में गा के सुना रहा हूँ। मारे बाणो धारा, दिस इज उल्लसित। मा सा पद मा पा सा रे गा मा रे गा सा, इस पे आंदोलित हो। मारे बाणो धारा श्रावण की
गाने में ये पूरा ये चारों गमक हम ज़्यादा व्यवहार करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यवहार होते हैं आंदोलित गमक। गांव का गाना बाद में मैं सोची भाई देखिए बोलेंगे कि आप थोड़ा बाद में किस प्रकार जो प्राचीन प्रबंध है, तो उस बीच में कि आंदोलित गमक कैसे होते हैं, ज़्यादा व्यवहार होते हैं। डॉक्टर जैना जी जो बोल रहे हैं, आप उसको इस दृष्टि से देखिए कि ये जो ओडिसी का अनन्य रूप है, जो यूनिक है, कहीं नहीं है। आप उसी दृष्टि से इनका वक्तव्य को सुने और आपको ये लगे कि ये जो डॉक्टर जैना बता रहे हैं ये ओडिसी का स्वतंत्र है और कहीं दूसरे विधा में नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार गमक के बारे में मैं जानकारी थोड़ा दे दिया। ओडिसी संगीत परंपरा के चर्या पदों में निबद्ध राग और तालों में बाद में काल आलोचना किए थे हमारा पूर्वतन जो कर चुके हैं ऑलरेडी। चर्या पदों में बहुत सारा राग है, अब मालूम है, बराड़ी, गुज्जरी मेंशन किया है, गुंजरी और गुज्जरी, सावरी, इस प्रकार रागों का चर्चा हुआ है चर्या पदों में। इसके बाद और ऋतुजुगो, हमारा जो ऋतुजुगो काव्य कविता में और ऋतुजुगो काव्य कविता में शताधिक रागों के निदर्शन मिलता है, जो कि वर्तमान काल में भी ओडिसी संगीत में गाया जा रहा है। बोलिए कि जो चर्या पद जो हमारा ऋतुजुगो काव्य कहाँ से शुरू होता है, 16 शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक ये ऋतुजुग काल रीतिकाल आ रहा है। डॉक्टर जैना जो चर्या पद के बारे में आपको अभी बताए, वो चर्या पद अब से 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना साहित्य जो रचित हुआ था उड़ीसा के भूखंड में, उसमें भी राग का प्रयोग हुआ था। ये कहने का ये मतलब है कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत, ओडिसी शास्त्रीय संगीत है, वो वहीं से, और उससे पहले तो था ही भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में, लेकिन रागों का प्रयोग 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में भी प्रयोग किया गया है। और जो रीतियुग जिसको कहते हैं, वो रीतियुग काव्य युग है। वो काव्य युग का 1500 शताब्दी 15th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के मिड तक, वो 350 साल के कालखंड में उसका बहुत सारे प्रयोग और समृद्ध प्रयोग हुए। तो किस प्रकार ये शताधिक राग का जो मेंशन किए हैं कवियों ने, राग शंकराभरण, मुखारी, काफी, खमाज, कल्याण, नट, सुरठी, सारंग, केदार कामोदी, केदार गौड़ा, कामोदी, गौड़ा, बराड़ी, चंद्रकांत, गुज्जरी, आरबी, आहारी, मालव गौड़ा, गौरी, किरवाणी, वज्रकांति, बिहाग, मार्ग बिहाग, जयजंती, ललित, मारवा, पूर्वी कल्याण, भैरवी आदि सबसे भी अधिक रागों की परंपरा के आधार पर प्राय 800 साल से भी अधिक समय से गाया जा रहा है। गीत गोविंद से पहले सर ने चर्चा की थी ये चर्या पद के बारे में। तो 7वीं से 10वीं शताब्दी शुरू करके पूरा 19वीं शताब्दी तक ये प्राय अभी तक भी चल रहा है। अतः ओडिसी के पर्याय में प्रबंध अथवा गीत के चारित्रिक धर्म को ध्यान में रखते हुए उनका ध्रुवपदांग, रागांग, भावांग, नाट्यांग, इस प्रकार 4 श्रेणियों में विभाजन किया जाता है। ओडिसी प्रबंध बहुत सारा 100 ओडिसी प्रबंध है। तो कैसे इसको मैंने कैटेगरी में हमारा गुरुजी ने कैटेगरी की है कि रागांग में जो हम लोग गा रहे हूँ जो रागांग पर्याय में, जैसे मारे बाणों में अभी गाया, तो नाट्यांग पर्याय में गाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका जो कंपोजिशन का जो हुआ है ना, ये पूरा कंपोजिशन का चरित्र कहते हैं कि ये रागांग पर्याय में होना चाहिए। इसी तो गीत के चारित्रिक धर्म को ध्यान में रखते हुए इस चारों प्रकार की वैशिष्ट्य होते हैं ओडिसी म्यूजिक में, रागांग, भावांग, नाट्यांग एंड ध्रुव पदांग। अभी थोड़ा इस बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ और साथ में थोड़ा इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जो रागांग है, भावांग है और नाट्यांग है,
ये तीनों प्रकार के रचनाएं क्यों किया गया, उसको तीनों प्रकार से परिवेशित क्यों किया जाता है। इसका यही कारण है, जो रागांग है वो संगीत रचना इस प्रकार का हुआ है जहां राग का विस्तार करने का स्कोप है। अब रचना ही कवियों ने इस प्रकार के किए हैं जहां आप राग का विस्तार कर सकते हैं। राग का स्वरूप को प्रकाश करने के लिए उसमें पर्याप्त अवसर है, तो इसीलिए उसको रागांग में गाया जाता है। और एक है भावांग। भावांग का मतलब ये होता है उसमें बहुत सारे भाव है, इमोशंस है, जिसमें आपको फीलिंग एक्सप्रेस करना जरूरत होता है, तो उसमें राग का प्राधान्य नहीं रहता, वो राग के आधारों पर गाया जाता है, लेकिन उसमें भाव का प्रकाश करना, इमोशन को, एक्सप्रेशन को, फीलिंग एक्सप्रेस करना, उसका महत्व ज्यादा रहता है। और कुछ रचनाएं ऐसे हैं जो अभिनयात्मक होता है। नाट्य में तो अभिनय होगा, तो इसीलिए कुछ रचनाएं कवियों ने ऐसे किए हैं जिसमें आपको अभिनय करने का बहुत सारे अवसर उन्होंने क्रिएट कर दिए हैं उस रचना में। तो इसीलिए जैसे इस गीत को परिवेशन करते हैं वो नाट्यांग के रूप में परिवेशित होता है। तो डॉक्टर जेना उसको डेमोन्स्ट्रेट करके आपको दिखाएगा भावांग, नाट्यांग और रागांग क्या है। ठीक, तो सर्वप्रथम हमने रागांग पर्याय के संबंध में आलोचना करें। इसमें 6 प्रकार के विस्तार क्रिया किया जाता है रागांग पर्याय में। क्या क्या? अनिबद्ध आलाप, पहले अनिबद्ध आलाप होगा, उसके बाद प्रबंध, पूरा प्रबंध को हमारा जैसे हमारा प्रबंध में भाषा और भाव का रूप दिया जा रहा है, तो इसीलिए प्रबंध, अनिबद्ध आलाप, प्रबंध, निबद्ध आलाप, पद विन्यास, पदों की विन्यास होगा, स्वर विन्यास जैसे लय क्रिया आप लोग समझ रहे हैं, और ताल, ये 6 प्रकार का वैशिष्ट्य होगा। इनमें रागों का संपूर्ण शुद्ध रूप में नियम के साथ गाया जाता है। तो अभी मैं रागांग पर्याय के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहता हूँ। राग केदार कामोदी। स्वरूप है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसीलिए बारिश का ही गाना है। कवियों ने बहुत सारा बारिश को लिखा है। बाद में सर थोड़ा रिपोर्ट करें, गाने का मतलब भी आपको थोड़ा सा। प्राण सजनी प्राण सजनी प्राण सजनी
सजनी प्राण सजनी प्राण सजनी प्राण सजनी केही बंचिब से केही बंचिब केही बंचिब केही बंचिब से केही बंचिब जामी प्राण सजनी देखी नवकालिका नवकालिका देखी नवकालिका नवकालिका केमते बंचिब केमते बंचिब केमते बंचिब से एका प्राण सजनी प्राण सजनी प्राण सामगारे गामा पदा नि द प म ग म प ग म ध प म ग रे सा प्राण सज गाम नि द प म ग म ग गाम नि द प म ग म प प प नि नि सा नि द प म ग रे प्राण सजनी म प प नि नि सा सा नि नि द द प नि सा नि रे सा नि द प द नि द प द म प ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा प्राण सजनी करजे लेखिर गिरा
में डॉक्टर जेना ने परिवेशन किया उसमें भावांग भी सम्मिलित है, क्योंकि ओडिसी के रचनाएं ऐसे हैं आप उसको राग और भाव अलग नहीं कर सकते। ये रागांग में इसको पेश किए, लेकिन उसमें जो भाव है वो भी भाव उभर के आ गया, क्योंकि ये जो रचना का मीनिंग है वो मीनिंग विरह काल का रचना है। वर्षा काल में जब विरह बढ़ जाता है, जब पास में नायिका नहीं है, नायक एकांत में है, तो नायिका का स्मृति स्मरण करके वो एक गीत गाता है, तो उसमें विरह का जो प्रकाश होता है वो तो भाव के आधार पर है, तो रागांग में गाया जाता है, फिर भी उसमें भी भाव प्रकाशित हो जाता है। ठीक, बारिश के ऊपर बहुत सारा गाना है, जैसे बरसा काले प्रिय रसा रसवा ये भी क्या का मतलब है, एक राग पे सारे बाबा ने बरसा रसा नयना बरसा रसा प्रकटिला बरसा रस प्रकटिला ओना 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 बर, ये मध्यम आदि की राग, बहुत सारा गाना है। अच्छा, और एक गाना चंद्रकांत राग में, इसमें पौड़ी का स्वरूप जो होता है थोड़ा मैं परिवेशन करना चाहता हूँ। ये एक पद सुना के जा रहा हूँ। चंद्रकांत पुलिस में ये हम लोग परिवेशन कर रहे हैं। आज एक ही कुमार चंद्रा नोना चंद्रा नोना देखी नहीं सोपन
ओडिसी जिस पढ़ी का बारे में परिवेशित करके आपको बताया, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। गीत का अंदर जो पढ़ी का चलन है, ये चलन ओडिसी संगीत की अनन्यता है। अब देखिए, ढूंढिए, कहीं नहीं, और पढ़ी भी जो बहुत वेराइट का पढ़ी भी है, वेराइट पढ़ी है। और हमारा एक सुर और प्रबंध ये शास्त्र में लिखा है। सुर एक रागों में, एक पढ़ी में भी बहुत सारा ताल का प्रयोग हो सकता है। जति ताल हो सकता है, अड़ताली 4-3 हो सकता है, त्रिपटा भी हो सकता है, 7 मात्रा भी हो सकता है, 6 मात्रा भी प्रयोग हो सकता है इसमें। भावांग पर्याय, इस पर्याय में राग और तालों के प्राधान्य की अपेक्षा रस और भावों के ऊपर अधिक गुरुत्व दिया जाता है। पारंपरिक स्वरों में इन गानों को गाया जाता है। इसमें स्थायी अथवा अंतरा युक्त पदों के द्वारा पद विन्यास एवं निबद्धालाप अच्छी तरह किया जाता है। इनमें स्वरों के संयोजन तथा तानों की विशेष प्रयोजन नहीं रहता है। तो एक मुखारी राग में थोड़ा सा एक मुखड़ा सुना रहा हूँ। कवि सम्राट उपेंद्र भंज की रचना। देखिए, ये गीत जब डॉक्टर जना पेश कर रहे हैं, अपने आप आंसू आ जाता है आंखों में। अगर इसका भाव आप समझेंगे तो अपने आप आंसू आ जाएगा। ये जो नायक है, नायक नायिका को छोड़ के चले गए हैं और नायिका एकांत में बैठी है। वो बोल रही है, जब मैं किसका हाथ पकड़ूं, अभी मेरा अंदर में इतना भाव उभर रहा है, तो मैं किसके पास जाऊं, किसका हाथ पकड़ूं। जीवन में व्रत लिया है, एक हाथ से दूसरा हाथ नहीं पकड़ूंगा। तो ये जो भाव आ रहा है, ये ऐसे गा रहे हैं डॉक्टर जैना, इसको हम कहते हैं भावांग। इसमें भाव का प्रमुखता रहता है और उसमें भाव का संचरण जो होता है, ट्रांसमिशन ऑफ द भाव बिकम्स वेरी इजी। इट रीचेस द ऑडियंस instantly, and the feeling being expressed by the singer gets transmitted to the audience, and आंसुओं का रूप में बिगड़ने लगता है। और भी पुराना गाना है, तोरे शरण गली रे
नाट्यम परिवार में बारे में थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। साथ भी साथ और अच्छा तरह से आपको समझाएंगे। विशेष रूप में गोटीपो नृत्य और बाहरी नृत्य, ओडिसी नृत्य में भी के साथ इन्हीं गानों को गायन किया जाता है। जो मर्दल वादन में विशेष भूमिका निभाता है, इसमें मर्दल का ज़्यादा भूमिका रहते हैं और इसमें स्वर विन्यास और तान का इससे प्रयोजन नहीं होता है। किस प्रकार नाट्यान परिवार थोड़ा मैं जानकारी देता हूँ। ये मिश्र काफी के ऊपर आधारित। श्याम को जुहार तार प्रेम को जुहार श्याम को जुहार तार प्रेम को तार प्रेम को तार प्रेम तार प्रेम तार प्रेम को जुहार श्याम को जुहार से करू गो से कीरती से करू गो से कीरती से करू गो से कीरती जादे लुहार श्याम जुहार तार प्रेम को जुहार श्याम जुहार मथुरा पथे गले गुआरी की मथुरा ददी इस प्रकार मथुरा को ददी मथुरा ददी बिकी पथे गले गुआरी की से जे सुआउछि से गोवर्धन गुहार श्याम जुहार श्याम जुहार तार प्रेम तार प्रेम तार प्रेम तार प्रेम तार प्रेम जुहार श्याम जुहार। लास्ट पे है ध्रुव पदांग की सही है। मैं थोड़ा सा गायक सुना रहा हूँ। सर ये इतना अच्छा माहौल बना है, मुझे कुछ ट्रेडिशनल कॉम्पोजिशन याद आ रही है। अगर आप सुनाए, मैंने बहुत थोड़ा सा सुना था, पर बाजी लाड़ी अगर थोड़ा सा सुनाए। बाजी रानी बाजी रानी, हाँ। बाजी रानी बाजी बा घोषा पद हाँ हाँ हाँ। बाजी को घोषा इधर सोची भाई सुने बात में आप सुनाइए सर प्लीज, थोड़ा सा प्लीज। मेरा ये गाना थोड़ा सा अच्छा तरह से याद नहीं। सोची भाई ने आपको बताया। अच्छा अच्छा। बाजी लाड़ी बाजी बो नहीं, बाजी बहुत जो स्लो टेम्पो में शुरू होता है। बाजी लाड़ी बाजी लाड़ी बाजी बो में भी और गाना भी है। चूली बेत राजा पूंजे बराज राजा पूंजे बराज राजा भूमि नदी के साही गो चूली बेत राजा। ये कुमन से राग है, इसमें है। अभी ध्रुव पदांग बारे में थोड़ा सा जानकारी दे। थोड़ा तरह मेरा अभी थोड़ा खत्म हो रहा है। हाँ हो गया। यह प्रबंध एक निर्दिष्ट राग और ताल में गाया जाता है। इसमें वीर रस के साथ भक्ति भाव की भी प्राधान्यता रहता है।
ध्रुपद गाने से पहले नौमतम आलाप किया जाता है, जैसे आप लोग मालूम है, विनीत जी भी है, ज़्यादा जानकारी देंगे बाद में। परंतु उड़ीसा संगीत में सरगम आदि स्वरों को लेकर नौमतम शैली में गायन किया जाता है। विभिन्न लय क्रियाओं के आलाप के द्वारा संपादन किया जाता है। प्रबंध के कथा वस्तुओं को 1 गुण, 1.5 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुना इस प्रकार लय आदि क्रियाओं के द्वारा गाया जाता है, लेकिन इनमें स्वर विन्यास, निबद्ध आलाप, तान आदि क्रिया नहीं की जाती है। सुरठ बेकराग सुरठ में थोड़ा सुरठ लाइन नहीं है। रे मा पा नी दा पा मा रे नी सा, मा पा नी सा रे सा नी दा पा, मा पा नी दा पा मा गा रे नी सा, राग ताल सुर भेद गुरु ज्ञान परसाद प्राप्त होई जे जन होई सुज्ञानी कोविद राग ताल सुर भेद गुरु ज्ञान परसाद प्राप्त होई जे जन होई सुज्ञानी कोविद होई सुज्ञानी कोविद होई सुज्ञानी कोविद राग ताल सुर भेद गुरु ज्ञान परसाद, राग ताल सुर भेद गुरु ज्ञान परसाद प्राप्त होई जे जन होई सुज्ञानी कोविद होई सुज्ञानी कोविद होई सुज्ञानी कोविद राग ताल सुर भेद गुरु ज्ञान परसाद प्राप्त होई जे जन होई सुज्ञानी कोविद राग। 1 गुण, 1.5 गुण, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण। अभी छांद हमारा छांद प्रबंध काल जी ने बताए थे आपको छांद क्या होता है। उड़ीसा संगीत में छांद एक पर्याय और स्वतंत्र शैली है। द्रुत तथा बाणी आधारित छंदबद्ध कविता छांद की संज्ञा धारण करती है। छांद बहुत पदों के युक्त होते हैं, अतः इनको पांचाली प्रबंध भी कहते हैं। शास्त्रों में पांचाली क्षिद्र गीत को चार प्रकार के होते हैं। चित्रपदा, चित्रकला, पांचाली, ध्रुवपदा मालूम है। इन छांदों के अध्रुवा और सध्रुवा रूप में प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा संगीत में भी विशेष रूप से अध्रुवा छांद, इसका ध्रुवपद नहीं आई, छांद प्रबंध की व्यवहार किया जाता है। इनको पारंपरिक स्वरों में गाया जाता है। इन छंदों की वृत्त सब इस प्रकार है: चोखी, चक्रकेली, आषाढ़ शुक्ल, कलेसा, पंचम बराड़ी, कल्याण आदि विभिन्न नामों में प्राचीन ग्रंथ में देखा जाता है। तो एक चिंता भैरव वृत्त में मैं गा के सुना रहा हूँ। आहा धनु वीर बरा धनु शरण थिला की करा
जाହାର बाण ब्रह्माण्ड दही पारे ताकू माइला प्रहस्त छार हे दैव ताकू माइला प्रहस्त छार अणु नथिले मोर जानती से पड़िब मूर्छी न पारि मु सगते अइली मोह जोगु विनाश चंपू गद्य और पद्य के विषय से चंपू के बारे में थोड़ा जानकारी दे दी थी बता सही। चंपू में गीतों के क से प्रारंभ करके ख पर्यंत अक्षर को प्रत्येक वर्णों को आधार कर पदों की रचना की जाती है। इसी प्रकार 34 अक्षर को आधार कर 34 चंपू गीत अथवा प्रबंध रचित होता है। कवि शुद्ध बलदेव जी के रचित किशोर चंद्रानो चंपू इनमें मूर्धा तान प्राप्ति किया जाता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ, राग सावेरी में त्रिपुरा ताल में 2 मात्रा से शुरू हो रहा है। कि हेला अब तो गीतों में सब जानते हैं, गीतों में क्या जरूरत नहीं है बताने का। धीर समीरे यमुना
चौतीसा भी है। चलिए मालाश्री भी एक प्रबंध है, थोड़ा माल की तरह पदों की सजाकर गाना मालाश्री कहा जाता है। यह भक्तिमूलक रचना होती है। जैसे ध्रुपद जो अंग के है, इनमें श्री जगन्नाथ जी, श्री गणेश जी, माता हरचंद देवी जी, माता हरचंद देवी, श्री हनुमान जी आदि देवी देवताओं के उद्देश्य में मालाश्री गीतों की रचना की जाती है। इसको ध्रुपद अंग के द्वारा गाया जाता है। जय हरा अभी मैं खत्म कर रहा हूँ। विनीत जी ज़्यादा हो गए, पल्लवी भी बहुत सारा है हमारा संस्कृत में, हमारा उड़ीसा संगीत में। तो अभी यहाँ मैं खत्म कर रहा हूँ। एक प्रश्न लेंगे क्या? एक प्रश्न लेंगे क्या है सर? ये जो जैसे हिंदुस्तानी क्लासिकल में रेंडिशन में हम शुरू जब करते हैं, एक वोकल रिसाइटल में आलाप हो गया, उसके बाद विलंबित लिया, छोटा ख्याल लिया, और उसके बाद अंत में तराना किया, तो एक जैसे 1 घंटे 1.5 घंटे का जो भी रिसाइटल है, तो अगर सिर्फ रागांग और सिर्फ म्यूजिक रिसाइटल में अगर ओडिसी के लिए करें तो किस तरीके से उसका स्वरूप कैसे आएगा शुरू में, मतलब कैसे वो रिसाइटल चलेगा? बोला ना रागांग होगा। हाँ। अगर स्टेज पे परिवेशन करूँगा तो रागांग होगा, इसके बाद भावांग, नाट्यांग, चंपू होगा, छंद होगा। अच्छा। ये सब विधा है ना सब। तो 2 घंटा प्रोग्राम में कर सकता हूँ, 3 घंटा भी गा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। आपको उड़ीसी संगीत के जितना स्वातंत्र्य है उसका झलक ही दिखाएगा। विस्तार से दिखाने का समय तो नहीं है, पाबंदी है, इसलिए इतना ही काफी रहेगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभारी हूँ हमारा अनुजा जी से। तो मैं यहाँ मेरा कार्यक्रम खत्म कर। We are extremely grateful to Dr. Vijay Jana for presenting his deliberations on